آج کے بیان میں ہم ایک ایسی پاک اور دل کو سکون دینے والی یاد کو بیان کر رہے ہیں جسے سن کر دل اپنے آپ سبحان اللہ کہہ اٹھے۔ یہ بیان ہے ام المومنین حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے آپسی ادب، محبت اور پاک رشتے کا۔ مدینہ منورہ کی ایک سادہ سی مگر برکتوں سے بھری صبح تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے ارادے سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی طرف تشریف لائیں۔ جب آپ صحن میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھریلو کاموں میں مشغول ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جیسے ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا فوراً اپنے کام چھوڑ دیے، ادب اور محبت کے ساتھ سلام کیا، دعا دی اور آنے کی وجہ پوچھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے سکون سے فرمایا، میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں دیکھ لیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام تو نہیں فرما رہے۔ یہ کہہ کر آپ اندر تشریف لے گئیں۔ دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار تھے۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اندر بھیج دو۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اندر داخل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار اور شفقت کے ساتھ انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ چہرے پر مسکان تھی اور نگاہوں میں بے انتہا محبت۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ایک ایسا پاک پیغام شروع ہوتا ہے جو امت کو آپسی محبت اور اتحاد کا سبق دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے قریب بٹھایا اور بڑے پیار سے پوچھا، بیٹی فاطمہ، کیسے آنا ہوا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ادب سے عرض کیا، بابا جان، میں آپ کی خدمت میں ایک عرض لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو میری بیٹی، تمہارے دل میں جو ہے بہچک بیان کرو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بابا جان، اگر کبھی کھانا کم ہو یا کوئی چیز گھر میں کم پڑے تو آپ مجھے دور سے بلانے کی تکلیف نہ کیا کریں، جہاں میں ہوں وہیں بھجوا دیا کریں۔ یہ بات ایک بیٹی کی محبت اور خیال سے بھری ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے بیٹی کی بات سنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ساری گفتگو سن رہی تھیں مگر ادب کے ساتھ خاموش تھیں۔ بیٹی کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، جس سے میں محبت کرتا ہوں، کیا تو بھی اس سے محبت رکھتی ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً عرض کیا، بابا جان، بالکل میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے وزندار الفاظ میں فرمایا، بیٹی، پھر عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر ماحول میں ایک خاص سکون اتر آیا۔ یہ بات صاف ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں محبت، ادب اور آپسی اتحاد کو کتنا پسند فرماتے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات دل سے قبول کی اور بنا کسی ملال کے وہاں سے واپس لوٹ آئیں۔ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو پھر سمجھایا کہ دلوں میں کوئی فرق، کوئی دوری اور کوئی غلط گمان نہیں ہونا چاہیے۔ جن پاک ہستیوں سے دین پہنچا ہے، ان کے درمیان محبت ہی اصل پہچان ہے۔
यहीं से यह बात वाज़ेह हो जाती है कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान कभी भी नफ़रत या दुश्मनी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ अरसे बाद खुद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान बयान करते हुए ऐसे अल्फाज फरमाए जो क़यामत तक मोहब्बत और सच्चाई की गवाही देते रहेंगे। आप फरमाती थीं कि मैंने इस दुनिया में किसी औरत को नहीं देखा जिसकी चाल ढाल, बैठने उठने और बात करने का अंदाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना मिलता हो जितना फातिमा का मिलता था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब भी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से खड़े हो जाते। आप बेटी को अपने हाथों से बिठाते, पेशानी को चूमते और बड़े प्यार से अपने पास जगह देते। यह मंजर देखकर सहाबा और घर के लोग समझ जाते कि फातिमा सिर्फ बेटी नहीं बल्कि रहमत का साया है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यह भी बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद भी हमारे दिलों में फातिमा के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई। गम के उन लम्हों में हम एक दूसरे का सहारा बने। उम्र का ज्यादा फर्क न होने की वजह से हमारे दरमियान माम बेटी के साथ साथ एक खास अपनापन भी था। एक दिन का वाक़िया है कि मैं और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साथ बैठे हुए थे। बातचीत के दौरान फातिमा की आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने बड़े मासूम अंदाज में फरमाया, आयशा, मेरे दिल में एक ख्याल आया है। मैंने कहा, कौन सा ख्याल? आप फरमाने लगीं, आपके वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और मेरे वालिद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यह सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने फौरन कहा, फातिमा, आपने सच फरमाया। हमें कुरान मिला, हमें हिदायत मिली और हमें अल्लाह की पहचान मिली, यह सब आपके वालिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में है। यह बातें किसी मुकाबले या फख्र के लिए नहीं थीं, बल्कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए थीं। उस मजलिस में न कोई हसद था, न कोई फर्क, बल्कि सिर्फ मोहब्बत, एहतराम और सच्चाई थी। उस पाक मजलिस में सुकून की एक लहर सी थी। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल एक दूसरे के लिए बिल्कुल साफ थे। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नर्म आवाज में कहा, फातिमा, मेरे दिल में भी एक बात आ रही है। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराकर पूछा, कौन सी बात आयशा? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगीं, मेरे दिल में यह ख्याल है कि आपके शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और मेरे शौहर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यह अल्फाज सुनकर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुछ पल के लिए खामोश हो गईं। उस खामोशी में कोई तकरार नहीं थी, बल्कि तस्लीम और रज़ा थी। फिर अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बात आगे बढ़ाते हुए फरमाया, क़यामत के दिन जब सब लोग उठाए जाएंगे तो तुम्हारा हाथ अली के हाथ में होगा और मेरा हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होगा। इन बातों में न कोई घमंड था और न ही किसी को कम समझने का एहसास। यह सिर्फ उस मुक़द्दर का जिक्र था जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने खास बंदों के लिए चुना था। थोड़ी देर बाद अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक और बात कही जो दिलों को और भी नरम कर गई। आप फरमाने लगीं, फातिमा, तुम औरतों की सरदार हो। जन्नत में जब तुम तख्त पर बैठोगी तो तुम्हारे साथ अली अल मुर्तज़ा होंगे। फिर कुछ ठहर कर कहा, और जब मैं जन्नत में बैठूंगी तो मेरे साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। यह सुनकर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखें नम हो गईं।
आपने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि इस सच्चाई के आगे अल्फाज की जरूरत ही नहीं थी। दोनों पाक बीबियों के दिल अल्लाह की रजा पर राजी थे। यह बातचीत हमें सिखाती है कि अल्लाह के चुने हुए घराने में मोहब्बत, तवाज़ो और एहतराम ही असल पहचान थी। जहां लोग बाद में झगड़ों की बातें गढ़ते रहे, वहां असल हकीकत सिर्फ आपसी प्यार और पाक नियत थी। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती थीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ऐसे ऐसे इम्तियाज़ात अता फरमाए जो मेरे लिए जिम्मेदारी भी थे और नेमत भी। आप बड़े अदब के साथ यह बातें बयान करती थीं, कभी फख्र के तौर पर नहीं बल्कि शुक्र के अंदाज में। आप फरमाती थीं कि मुझे यह खास दर्जा हासिल हुआ कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने वाली वह बीवी हूँ जो कुंवारी थी। यह बात मैं अपने लिए नहीं बल्कि अल्लाह की हिकमत समझने के लिए बयान करती हूँ, क्योंकि अल्लाह जिसे चाहता है, जैसे चाहता है, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कर देता है। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक और वाक़या बयान करती हैं। आप फरमाती हैं कि बद्र की रात का जिक्र है। उस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज की तलाश में थे। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आप क्या ढूंढ रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ऐसा कपड़ा तलाश कर रहा हूँ जिससे इस्लाम का निशान बुलंद किया जाए। मैंने फौरन अपना दुपट्टा पेश कर दिया, जिसकी ज़मीन सफ़ेद थी और उस पर काली धारियां बनी हुई थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने हाथों से संभाला और उसी को इस्लाम का झंडा बनाकर लहराया। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि यह भी अल्लाह की तरफ से मुझे मिलने वाला एक खास करम था। आप यह भी फरमाती थीं कि मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी आया। मुनाफिकीन ने मुझ पर बहुत सख्त तोहमतें लगाईं। दिल टूट गया, मगर भरोसा अल्लाह पर कायम रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी पाकदामनी की गवाही किसी इंसान से नहीं दिलवाई, बल्कि अपने कलाम में खुद मेरी बेगुनाही बयान फरमा दी। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती थीं कि जब अल्लाह अपने बंदे की हिफाजत करता है तो दुनिया की कोई ताकत उसका नुकसान नहीं कर सकती। यह सब कुछ मेरे लिए इज्जत नहीं बल्कि सब्र और शुक्र का सबक था। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी जिंदगी के सबसे नाजुक और सबसे भारी लम्हों का जिक्र करते हुए अक्सर खामोश हो जाया करती थीं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ने लगी तो हर पल उम्मत के लिए एक इम्तिहान बन गया। उन दिनों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमन्ना जाहिर की कि आखिरी अयाम अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में गुजारे। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि वह घड़ियां मेरे लिए इज्जत भी थीं और आजमाइश भी। मैं हर लम्हा यह महसूस कर रही थी कि यह वक्त आम नहीं बल्कि अमानत का वक्त है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कभी बेहतर होती, कभी कमजोरी बढ़ जाती, मगर आपकी जुबान पर हर हाल में अल्लाह का जिक्र रहता। एक दिन मैं देख रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कहना चाहते हैं, मगर आवाज में कमजोरी थी। मैंने कान करीब किया तो आपने हौले से अल्लाह का नाम लिया। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि यह दुनिया से रुखसती का वक्त करीब है। दिल कांप उठा मगर सब्र को थामे रखा। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि आखिरी वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरी गोद में था। मेरी निगाहें आपके चेहरे अनवर पर जमी हुई थीं। मैं देख रही थी कि कैसे नूरानी चेहरा सुकून की तरफ बढ़ रहा है। वह लम्हा ऐसा था जिसे न जुबान बयान कर सकती है और न दिल भूल सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे और मेरी गोद उस अमानत की गवाह थी।
अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि यह मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज भी है और सबसे बड़ा गम भी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ने मुझे एक ऐसा मुकाम अता फरमाया जो जिम्मेदारी से भरा हुआ था। इन लम्हों के बाद मदीना की फिजा बदल गई। हर घर में सन्नाटा था, हर दिल पर बोझ। मगर इन्हीं लम्हों ने उम्मत को यह सबक दिया कि सब्र, रज़ा और मोहब्बत ही असली विरासत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना मुनव्वरा में जो सन्नाटा छा गया, वह सिर्फ गलियों में नहीं था, बल्कि हर दिल के अंदर उतर चुका था। मगर इसी गम के माहौल में एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई, अहले बैत और उम्मुल मोमिनीन के दरमियान मोहब्बत, एहतराम और एक दूसरे की कद्र कभी कम नहीं हुई। सैयदा फातिमा तुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद मुहतरम की जुदाई को सब्र और खामोशी के साथ सहा। वहीं अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी इस गम को इबादत और खिदमत में बदल दिया। दोनों पाक बीबियां अलग अलग मकाम रखती थीं, मगर मकसद एक था, अल्लाह की रज़ा और दीन की हिफाजत। यह बात समझने वाली है कि बाद के ज़मानों में जिन लोगों ने इनके रिश्ते को गलत रंग देने की कोशिश की, उन्होंने हकीकत को नहीं बल्कि अपने ख्यालात को बयान किया। हकीकत यह है कि सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिलों में एक दूसरे के लिए इज़्ज़त और दुआ थी, न कि कोई शिकायत या नफरत। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इल्म का समंदर थीं। सैकड़ों सहाबा और ताबेईन ने उनसे दीन सीखा। वहीं सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ुहद, सब्र और सादगी की मिसाल थीं। यह दोनों शख्सियतें उम्मत के लिए दो चिराग हैं, एक इल्म की रोशनी, दूसरी अमल की खुशबू। इस पूरी कहानी का पैगाम बिल्कुल साफ है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में मोहब्बत, तहम्मुल और अदब था, तो उम्मत को भी वही रास्ता अपनाना चाहिए। न तफरीक, न झगड़ा, न बदगुमानी, बल्कि एक दूसरे के लिए नरमी और दुआ। आज अगर हम सैयदा फातिमा तुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कुछ सीखते हैं तो वह सब्र और वफा है, और अगर अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कुछ सीखते हैं तो वह इल्म, सच्चाई और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन मुक़द्दस हस्तियों की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे और हमारे दिलों को हर किस्म की नफरत से पाक कर दे। आमीन। अल्लाह ताला ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा, तो उनकी जिंदगी का हर लम्हा नूर और हिकमत से भरा हुआ था। इन्हीं नूरानी लम्हों में से एक लम्हा वो भी था जब अल्लाह की तरफ से उनकी नस्ल में एक ऐसी पाक बेटी आने वाली थी जो क़यामत तक आने वाली औरतों के लिए मिसाल बननी थी। एक दिन अल्लाह के फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उनके हाथ में जन्नत का एक अनोखा फल था जिसकी खुशबू और नूर इस दुनिया के फलों से बिल्कुल जुदा थी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, यह अल्लाह ताला की तरफ से है, इसे तनाफुल फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए उस फल को खा लिया। उस फल का स्वाद ऐसा था जैसा इससे पहले कभी महसूस नहीं किया गया था, न सिर्फ जायका बल्कि रूह तक उतर जाने वाली मिठास। कुछ ही अरसे बाद अल्लाह ताला ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हमल की नेमत से नवाज दिया। यह आम हमल नहीं था, बल्कि एक ऐसी बेटी की आमद थी जो पाकीज़गी, सब्र और मोहब्बत की मिसाल बनने वाली थी। फिर एक बार दोबारा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और मुबारकबाद देते हुए फरमाया, या रसूल अल्लाह, इस बार आपके घर एक बेटी पैदा होगी जो तमाम औरतों से अफजल, पाक और अल्लाह की बेहद प्यारी होगी।
यह खुशखबरी सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल शुक्र से भर गया। आप फौरन अपनी प्यारी बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ लाए और फरमाया, ए खदीजा, अल्लाह ने हमें एक ऐसी बेटी अता करने का फैसला किया है जो उम्मत के लिए रहनुमाई का चिराग बनेगी। यहीं से शुरू होती है उस नूरानी हस्ती की कहानी जिसे दुनिया फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से जानती है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उस पाक बेटी के नूर से नवाजा तो यह हमल आम औरतों के हमल जैसा नहीं था। आम तौर पर औरतें गर्भ के दिनों में कमजोरी, तकलीफ और बेचैनी महसूस करती हैं, मगर खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उनके दिल में अजीब सुकून था, जिस्म पर कोई बोझ नहीं, कोई परेशानी नहीं। ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ताला खुद उनकी हिफाजत फरमा रहा हो। वह जब अकेली बैठती तो उनके दिल में तस्बीह और हम्द के जुमले अपने आप उतर आते। कई बार उन्हें ऐसा महसूस होता कि उनके पेट में पल रही बच्ची अल्लाह की याद से उन्हें तसल्ली दे रही हो। मक्का के मुश्किल हालात, कुरैश की मुखालफत और इस्लाम के शुरुआती दिन, इन सब के बावजूद खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर सुकून की रौनक बनी रहती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह सब देखकर हैरत भी करते और अल्लाह का शुक्र भी अदा करते। वक्त गुजरता गया और विलादत का दिन करीब आने लगा। अब वही खदीजा जो अपने सब्र और ताकत के लिए मशहूर थीं, अचानक दर्द-ए-ज़ह में मुब्तला हो गईं। उस वक्त हालात यह थे कि घर में कोई औरत मौजूद नहीं थी। रिश्तेदारों से ताल्लुक पहले ही इस्लाम की वजह से कमजोर हो चुके थे। मजबूरी में खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी एक बांदी को भेजा कि किसी औरत को मदद के लिए बुला लाएं। मगर जब बांदी रिश्तेदारों के पास पहुंची और हाल बयान किया तो जवाब बड़ा सख्त था। उन्होंने कहा कि खदीजा ने अमीरी और शान छोड़कर एक गरीब नबी का साथ चुना और नए दीन को कबूल करके हमारे रस्मो रिवाज से बगावत की, अब हम उसकी मदद नहीं करेंगे। जब यह बात खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक पहुंची तो उनकी आंखें नम हो गईं, मगर जुबान पर कोई शिकवा नहीं आया। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, ए अल्लाह, इस वक्त मेरे लिए तू ही काफी है। अगर तू चाहे तो रहमत उतार दे और अगर चाहे तो आजमाइश में डाल दे। और फिर उसी लम्हे अल्लाह की रहमत ने ऐसा नूरानी रंग दिखाया जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। जब हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस कठिन घड़ी में बिल्कुल तन्हा थीं और उनका दिल सिर्फ अल्लाह ताला पर भरोसे से भरा हुआ था, तभी अचानक कमरे की फिजा बदल गई। एक लम्हे में ऐसा महसूस हुआ जैसे अंधेरा छंट गया हो और हर तरफ नूर ही नूर फैल गया हो। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि उनके सामने 4 नूरानी औरतें खड़ी हैं। उनके चेहरे रोशन, कपड़े पाक और अंदाज ऐसा कि दिल अपने आप इत्मीनान से भर जाए। यह मंजर देखकर वह घबरा गईं और कांपती हुई आवाज में पूछा, आप कौन हैं और मेरे पास किस मकसद से तशरीफ लाई हैं? उनमें से एक नूरानी औरत आगे बढ़ी और मुस्कुराकर बोली, ए खदीजा, घबराइए नहीं। आपने जिस रब को पुकारा था उसी के हुक्म से हम आपकी मदद के लिए आई हैं। मैं हजरत हवा अलैहिस्सलाम हूँ। दूसरी औरत ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हूँ, फिरौन की बीवी जिसने कुफ्र के महल में रहकर भी ईमान की हिफाजत की। तीसरी नूरानी औरत ने नर्म आवाज में कहा, मैं हजरत मरियम बिनते इमरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हूँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा। आखिर में चौथी औरत ने फरमाया, और मैं हजरत कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हूँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन। हम सब अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे पास आए हैं।
इन मुक़द्दस और पाक हस्तियों को देखकर खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का डर खत्म हो गया। दिल को ऐसा सुकून मिला जैसे बरसों की थकान उतर गई हो। दर्देज़े अब भी था, मगर उसमें रहमत घुल चुकी थी। उन नूरानी औरतों ने खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दिल से खिदमत की और उन्हें हौसला देती रहीं। हर लम्हा इस बात की गवाही दे रहा था कि यह कोई मामूली विलादत नहीं, बल्कि एक ऐसी बेटी की आमद है जो आने वाले ज़मानों के लिए रहनुमा होगी। और फिर वक्त करीब आ गया उस घड़ी का, जब मक्का की सरजमी एक नए नूर से रोशन होने वाली थी। मदीना से पहले का वह मक्का, जो काफिरों की जालिम हुकूमत और ईमान वालों की तन्हाई में डूबा हुआ था, उस सुबह अचानक बदल गया। 20 जमादी उसानी, जुम्मे की सुबह, जब सूरज अपनी रोशनी फैलाने लगा, तो उस रोशनी के साथ एक और नूर भी दुनिया में आया। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश का वक्त था। उनकी मासूम, नाजुक और पाक सूरत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत की एक रोशनी इस दुनिया में उतर आई हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को देखकर एक अजीब सी खुशी और तसल्ली महसूस की, ऐसा मानो उनके दिल को किसी ने सुकून का पानी दे दिया हो। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बचपन से ही अपने वालिद के सिखाए हुए रास्ते को अपना लिया। उनका हर काम, हर बोली, हर इशारा, सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की नुमाइंदगी करता था। यही वजह थी कि उनकी अदबो इखलास में नबी की सूरत की झलक साफ दिखाई देती थी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बार फरमाती थीं, जब मैं फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रही हूँ। उनके अंदर रसूल की हर खूबी मौजूद है, उनकी शांति, उनकी नम्रता, उनकी शफकत। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की यह खासियत थी कि वे सिर्फ अपने पिता की बेटी नहीं थीं, बल्कि उनके रास्ते की वो चिराग थीं जो हर अंधेरे को मिटाने की ताकत रखती थी। और इसी नूरानी बेटी की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भी एक खास रिश्ते से जुड़ा हुआ था। आपने खुद कहा था कि फातिमा मेरा जिगर का टुकड़ा है, जो भी उसे दुख पहुंचाएगा, उसने आपको दुख पहुंचाया है। यह वाकया सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि उस रिश्ते की गहराई की भी गवाही देता है जो पिता और बेटी के बीच हो सकता है। लेकिन इस कहानी में सिर्फ प्यार ही नहीं है, बल्कि एक बड़ी सच्चाई भी है। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जन्म उस दौर में हुआ जब ईमान की राह पर चलना सबसे बड़ा इम्तिहान था। और इस इम्तिहान में यह छोटी सी नूरानी बच्ची बड़ी से बड़ी ताकत बनकर उभरी। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खासियत यही थी कि वे सिर्फ नबी की बेटी नहीं थीं, बल्कि उनके साथ हर मुश्किल में खड़ी रहने वाली एक मजबूत और नूरानी सहारा थीं। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई तकलीफ आती, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले उनकी सेवा में पहुंच जाती। यह बात सिर्फ परिवार का एहसास नहीं थी, बल्कि उनकी सीरत की पहचान थी। नबी ने कई बार अपने सहाबों से कहा, फातिमा मेरा जिगर का टुकड़ा है। जिसने उसे नाराज किया, उसने मुझे नाराज किया। और जिसने उसे दुख पहुंचाया, उसने मेरे साथ रिश्ता बिगाड़ा। इस वाक़ये में नबी की उस गहरी मोहब्बत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो किसी पिता की मोहब्बत से कहीं आगे थी, एक ऐसे पिता की मोहब्बत जो खुद अल्लाह के रसूल हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इस बात का जिक्र करती कि अगर उन्हें फातिमा के सिर के एक गुच्छे बाल की भी मर्यादा मिल जाती तो वे खुद को बेहद खुशकिस्मत समझती। यह बात सिर्फ इज्जत का बयान नहीं, बल्कि फातिमा की उच्च जगह और हकीकी अहमियत का एहसास है। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की यह मोहब्बत सिर्फ अपने पिता तक सीमित नहीं थी। उनका हर काम इस बात का सबूत था कि वे हर वक्त खिदमत और इबादत में लगी रहती।
वो घर की सबसे छोटी संतान थीं, लेकिन अपने अंदर एक ऐसी जिम्मेदारी रखती थीं जो किसी बड़ी उम्र की औरत को भी शोभा दे। फातिमा की सेवा का सबसे बड़ा सबूत यह था कि जब भी उनके माता पिता, खास तौर पर उनके पिता, को कोई मुश्किल आती तो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले वहां पहुंचती। यह सिलसिला आगे चलकर उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया, और यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इतना पसंद किया और उनसे इतनी मोहब्बत की। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ये सादगी, ये शफकत, ये हिम्मत, सब कुछ इस बात का संकेत था कि वह आने वाली दुनिया के लिए सिर्फ एक बेटी नहीं बल्कि एक मिसाल बनेंगी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहे थे तो एक काफिर कुरैशी ने उनका रास्ता रोका। यह व्यक्ति सिर्फ रोके ही नहीं बल्कि बेइज्जती और गालियों से भरा हुआ था। उसने नबी को गालियां दीं और उनकी पवित्र शख्सियत को तिरस्कृत करने की कोशिश की। इसी वक्त हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा वहां आ पहुंची। उन्होंने देखा कि उनके पिता के साथ जुल्म हो रहा है और वे चुप नहीं बैठ सकीं। फौरन आगे बढ़कर उन्होंने अपने वालिद के सिर से गर्द झाड़ी और उस काफिर से कहा, क्या तुम इंसान हो या जानवर? क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत का कोई हिस्सा नहीं बचा? मेरे वालिद ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम उनके साथ इस तरह बर्ताव कर रहे हो? फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की यह बात सुनकर वह काफिर शर्मिंदा हो गया। उसकी बेइज्जती उसके चेहरे पर साफ दिखने लगी। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। यह वाकया फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शख्सियत की ताकत को दर्शाता है। वे सिर्फ बेटी नहीं थीं बल्कि अपने पिता की इज्जत और उनकी हिफाजत के लिए भी तैयार थीं। फातिमा का यह साहस एक बहुत बड़ी सीख देता है कि जब किसी नबी या ईमान वालों पर जुल्म होता है तो इंसान को चुप नहीं रहना चाहिए। बात सिर्फ गुस्सा नहीं था बल्कि यह अदब, हिम्मत और नसीहत का तरीका था। और यह तो बस शुरुआत थी। कुछ समय बाद एक और घटना हुई जिसमें फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने पिता के साथ हो रहे जुल्म का सामना किया। यह घटना काबा शरीफ के सामने हुई, जहां कुछ काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दीं और उनकी इबादत के दौरान गंदगी डाल दी। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की नफासत, उनका दर्द और उनका साहस, इन सब का असर देखकर यह बात साफ हो जाती है कि वह अपने पिता की सच्ची सहेली और सबसे बड़ी सहारा थीं। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के सामने नमाज अदा कर रहे थे। उस वक्त कुछ काफिर कुरैशी वहां मौजूद थे जो नबी के खिलाफ गुस्सा और नफरत के आग में जल रहे थे। वे यह सोचते थे कि अगर वे नबी को अपमानित कर दें तो उनका ईमान कमजोर हो जाएगा। उसी दौरान एक ने एक ऊंट की ओझड़ी और गंदगी लेकर नबी के सिर पर डाल दी। ऊंट की ओझड़ी इतनी भारी थी कि नबी का सर झुक गया और कपड़े गंदे हो गए। उन काफिरों ने जोर जोर से हंसकर यह समझ लिया कि उन्होंने नबी को शर्मसार कर दिया। लेकिन जब फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को यह खबर मिली तो वह बस अपने घर नहीं बैठीं। उन्होंने तुरंत वहां पहुंचने का फैसला किया क्योंकि उनका दिल अपने वालिद के दर्द के लिए फट रहा था। जब वह वहां पहुंची तो उन्होंने अपने पिता की हालत देखी। उनके कपड़े गंदे, सिर झुका हुआ और उनकी इज्जत पर हमला हो चुका था। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रोते हुए अपने पिता के सिर से वह गंदगी साफ कर दी। लेकिन केवल साफ करना ही पर्याप्त नहीं था। उनका गुस्सा अंदर से उठ रहा था और उन्होंने कुरैशी के उन लोगों को कड़ी फटकार लगाई। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम किसको अपमानित कर रहे हो? यह सिर्फ एक इंसान नहीं, यह अल्लाह का रसूल है। तुम्हारी यह हरकत तुम्हारे लिए सबसे बड़ा नुकसान है। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की यह निस्वार्थ सेवा और साहस इस बात का सबूत है कि उनके दिल में सिर्फ मोहब्बत ही नहीं
बल्कि ईमान की ताकत भी थी, क्योंकि वह जानती थीं कि जब पिता पर कोई जुल्म हो तो उसकी मदद करना सिर्फ फाराजा नहीं बल्कि ईमान की पहचान है। और यह घटना भी उस दौर की एक बड़ी सीख बन गई। जो लोग नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे, उन्हें यह समझना था कि उनकी इज्जत से खेलने का मतलब अल्लाह की हुकूमत के खिलाफ जाना है। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने यह साबित कर दिया कि एक बेटी भी अपने पिता की रक्षा कर सकती है, और वह भी सबसे मुश्किल हालात में। जब उहूद की लड़ाई हुई तो मुसलमानों पर काफिरों ने अचानक हमला कर दिया। उस युद्ध में नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक हुए और उन्होंने अपने सहाबों के साथ शिद्दत से लड़ाई की। लेकिन दुश्मन की मार इतनी तेज थी कि कई मुसलमान घायल हो गए। एक क्षण ऐसा आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसने लगे और वह जमीन पर गिर पड़े। पत्थरों की चोट से उनके दांत टूट गए और माथे से खून बहने लगा। यह दृश्य सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल कांप उठा। वह अपने छोटे बेटे हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को वहां छोड़कर कुछ मुस्लिम महिलाओं के साथ उहूद के मैदान की तरफ चल पड़ी। जब वह वहां पहुंची तो उन्होंने अपने पिता को जमीन पर बेहोश पड़ा देखा, खून उनके चेहरे पर और उनकी हालत बहुत गंभीर। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल टूट गया। उसने तुरंत अपने पिता का सिर अपने आंचल पर उठा लिया और आंसुओं से उनकी आंखें भीगी हुईं। उनकी आंखों से बहते आंसू इस बात का सबूत थे कि उनका दर्द सिर्फ एक बेटी का दर्द नहीं था, यह एक इंसान का दर्द था जिसने अपने पिता की खातिर सब कुछ सह लिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ढाल में पानी लाया और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने पिता के घावों को साफ किया। फिर उन्होंने सूखे पेड़ की पत्तियां लेकर उन पर मरहम लगाया ताकि कम से कम दर्द में थोड़ी राहत मिल सके। इस दृश्य में एक गहरी बात छिपी थी। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सेवा सिर्फ जब उन्हें खुशी होती थी तब नहीं थी, बल्कि वह हर मुश्किल में, हर दर्द में, हर जख्म में अपने पिता के साथ खड़ी रहती थीं। यह सिलसिला उनके जीवन का हिस्सा बन गया। जब भी उनके माता पिता, खास तौर पर उनके पिता को कोई तकलीफ होती, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले मदद के लिए पहुंचती। और यही वजह थी कि नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इतना प्यार किया, क्योंकि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा में वह सब कुछ था जो एक सच्चे इंसान में होना चाहिए: मोहब्बत, इबादत और बेइंतहा सच्चाई। समय का पहिया घूमता गया और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उम्र का असर और कई बीमारियां उनके शरीर को कमजोर कर रही थीं। खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा हमेशा इस बात से दुखी रहतीं कि वह अब नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत नहीं कर पा रहीं। वह रोते हुए अल्लाह से दुआ करतीं, ऐ अल्लाह, मैं इस दुनिया के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी हूं। मुझे इस दुनिया से कोई मोह नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं अपने प्यार और अपने पति की सेवा नहीं कर पा रही। खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की इस तकलीफ को देखकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल टूट गया। उन्होंने अपनी मां की आंखों में छिपा दर्द महसूस कर लिया और उनसे कहा, अम्मी जान, आप फिक्र न करें। अब्बा की खिदमत अब मैं करूंगी। जब तक मैं जिंदा हूं, उनके लिए कोई कमी नहीं आने दूंगी। फातिमा की यह बात सुनकर खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा मुस्कुरा उठा। उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगाकर कहा, ऐ फातिमा, तुम मेरी जान हो। जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो तुम गम मत करना। मेरी मगफिरत के लिए हमेशा दुआ करना। और मुझसे एक वादा करो, मेरे बाद तुम अब्बा की खिदमत की पूरी जिम्मेदारी निभाओ। याद रखना, अब्बा की सेवा करने से तुम्हें दोनों जहां में भलाई मिलेगी।
खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह से दुआ की कि वह फातिमा को अपने अब्बा की सेवा का मुक़द्दस मौका दे और बदले में उसे इज्जत और बुलंदी अता करे। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र उस समय महज 11 साल थी और इतने कम उम्र में उन्हें अपने माता पिता, खास तौर पर अपनी मां से बिछड़ने का दर्द सहना पड़ा। जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल टूट गया। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी दुनिया का सबसे बड़ा सहारा छिन गया हो। और दूसरी तरफ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी गम और तन्हाई में टूट गईं, क्योंकि उनकी मां ने उन्हें अपने दिल से प्यार किया था और वह भी अपनी मां को अपने जीवन से बढ़कर चाहती थीं। फातिमा की यह हालत देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दिलासा दिया और फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी मां को जन्नत में जगह दी है। तुम उन्हें याद करो, लेकिन गम में डूबो मत, बल्कि उनकी मगफिरत के लिए दुआ करो। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो वहां की सरजमीन पर नए मुसलमानों की जिंदगी बस रही थी। मगर एक बात थी जो हर किसी की निगाह में थी, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पाक सूरत और नेक हुस्न। मदीना में लोगों ने देखा कि यह लड़की सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि ईमान, सादगी और सलीके की मिसाल है। फिर धीरे धीरे शादी के प्रस्ताव आने शुरू हुए। दूर दूर से पढ़े लिखे, अमीर और नजरे आदाब वाले नौजवान फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह करने की ख्वाहिश रखने लगे। यहाँ तक कि अंसार और मुहाजिर दोनों ही फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश होने लगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया और खामोश रहे। फिर एक दिन उन्होंने खुद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त गरीब, सादगी पसंद और बहुत ईमानदार थे। नबी करीम ने उनसे पूछा, क्या तुम मेरी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह करना चाहते हो? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने चुप्पी से जवाब दिया कि उनके पास मेहर देने के लिए कुछ खास नहीं है, सिर्फ एक घोड़ा और एक जिरह बर्मा, छोटा घोड़ा है। नबी करीम ने कहा, घोड़ा जिहाद के लिए जरूरी है, लेकिन जिरह बर्मा को तुम बेच सकते हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अगले दिन जिरह बर्मा लेकर नबी के दरबार में आए, लेकिन उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। तब उन्होंने खुद यह जिरह लेकर फिर नबी के पास हाजिर हुए। उस समय हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु समेत कई सहाबा वहां मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या इनमें से कोई अली से जिरह को मुनासिब कीमत पर खरीद सकता है? हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इसे 400 दिरहम में खरीदता हूँ। नबी करीम ने यह पेशकश कबूल कर ली और 400 दिरहम अली को दे दिए। फिर इसी रकम को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को सौंप दिया गया। इस तरह फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह तय हो गया, बिना शानो शौकत, सिर्फ ईमान और सादगी के साथ। जब मेहर की रकम अता हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह का खुतबा पढ़ाया। खुतबा में नबी करीम ने कहा, तुम सब गवाह रहो, मैं अपनी बेटी फातिमा को 400 दिरहम के मेहर के बदले अली इब्न अबी तालिब के निकाह में दे रहा हूँ। फिर उन्होंने हजरत अली से पूछा, क्या तुम इसे कबूल करते हो? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अदब और खुशी के साथ कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कबूल करता हूँ। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को अपने चचेरे भाई और सबसे करीबी साथी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जोड़ दिया।
यह शादी सिर्फ एक रिश्ते की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक मिसाल थी, सादगी, ईमान और मोहब्बत की मिसाल। निकाह के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास खुद का कोई घर नहीं था, इसलिए फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद के घर में ही रहने लगीं। यह एक बड़ी बात है, क्योंकि उस समय शादी के बाद पत्नी का मायके में रहना एक आम बात नहीं थी। लेकिन हजरत अली की हालत बहुत मुश्किल थी। उनके पास कभी कभी एक वक्त का खाना भी नहीं होता था। कई बार वे अपने पेट पर पत्थर बांधकर रहते थे, ताकि भूख का एहसास कम हो जाए। यह सब देखकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद को बहुत बेबस महसूस करने लगे। उनका दिल फातिमा को अपने पास रखना चाहता था, लेकिन हालत ऐसी थी कि वे खुद भी गरीबी से जूझ रहे थे। फिर उन्होंने एक छोटा सा मकान किराए पर लिया, ताकि वे अपनी बीवी के साथ अकेले और आराम से रह सकें। लेकिन उनकी शर्म और आदब की वजह से वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर यह बात बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वो हमेशा यही सोचते रहते थे कि कैसे अपनी बीवी को अपने घर ले जाएं और कैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगें। फिर एक दिन उनके छोटे भाई हजरत अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी दिल की हालत को समझ लिया और कहा, भाई, मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप अपनी बीवी को अपने घर ले आइए। जब हजरत अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने भाई हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि वे फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपने घर ले आए, तो हजरत अली की शर्म और अदब का स्तर बहुत ऊंचा था। उन्होंने कहा, इसके लिए मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त चाहिए, क्योंकि मैं उनकी बेटी को अपने घर भेजने की हिम्मत नहीं रखता। फिर हजरत अकील ने अपने भाई को लेकर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर गए। जब हजरत आयशा ने इस बात को सुना, तो उन्होंने तुरंत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर सलाम किया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके चचेरे भाई हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपने घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन वह बहुत शर्मीले हैं। वे खुद आपको बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। हजरत आयशा की यह बात सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर हजरत अली को बुलाया। हजरत अली अदब से हाजिर हुए और नबी ने पूछा, क्या तुम्हारी यह ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी फातिमा को अपने घर से रुखसत कर दूं? हजरत अली ने नम्रता से कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी सिर्फ एक ही इल्तजा है। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और उन्हें अपने बेटे अली के हवाले करते हुए फरमाया, ए अली, यह मेरी दिल का टुकड़ा है, आंखों की ठंडक है। फातिमा तुम्हारे लिए बरकत और भलाई का जरिया बने। फिर फातिमा की तरफ देखकर नर्म दिली से फरमाया, ए फातिमा, तुम्हारे शौहर मेरे दामाद हैं और हर एतबार से तारीफ के काबिल हैं। अब तुम दोनों के बीच मोहब्बत और रहमत का रिश्ता कायम करो और अपने घर जाकर बस जाओ। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए यह एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि यह इजाज़त सिर्फ एक घर की बात नहीं थी, बल्कि यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और उनकी मोहब्बत की निशानी थी। उस रात फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर चली गईं और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह उस सादगी और ईमान की कहानी थी जिसमें नबी की बेटी और नबी का दामाद एक साथ एक छोटे से घर में खुशी खुशी रहने लगे। अगली सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया और उनके जिस्म पर पानी छिड़क कर दुआ की। फिर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाकर कहा, ऐ माँ, तुम मुबारक हो। अपने शौहर के हुक्म की कभी नाफरमानी मत करना। उनके गम और खुशी में बराबर की शरीक रहना।
फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए यह नसीहत उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई कि शादी में इज्जत, वफादारी और मोहब्बत सबसे बड़ी चीजें हैं। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने नए घर में प्रवेश किया, लेकिन वहां कोई आलीशान सुविधाएं नहीं थीं। उनके पास बस एक छोटी सी जगह थी और बहुत ही साधारण चीजें। कभी कभी खाने के लिए भी दिक्कत होती थी। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी शादी को किसी महंगे महल की तरह नहीं, बल्कि ईमान की एक छोटी सी दुकान की तरह माना। उन्होंने कभी भी अपने लिए आराम और आरामदेह चीजों की मांग नहीं की। उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, अपने पति की खुशी और अल्लाह की रजा। एक दिन फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत परेशान हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और उनके हाथ थक कर बेजान हो गए थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशानी में क्यों हो? हजरत अली ने कहा, मेरे पास आज कुछ भी नहीं है। घर में कुछ खाने को भी नहीं है और मुझे डर है कि मैं अपनी बीवी को भूखा रखूंगा। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, तुम घबराओ मत, अल्लाह की तरफ से हर चीज आती है। हमारी ताकत हमारे ईमान में है और हमारा भरोसा अल्लाह पर है। फिर उन्होंने अपनी तरफ से एक छोटा सा काम किया। उन्होंने अपने हाथ से रोटी बनाई और घर में मौजूद थोड़ी सी दाल को पकाया। यह खाना बहुत साधारण था, लेकिन उसमें मोहब्बत और सब्र की खुशबू थी। हजरत अली ने यह देखकर कहा, तुम्हारी ये सादगी मुझे शर्मिंदा कर देती है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर नहीं कर पा रहा। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराकर कहा, तुम मुझे हर चीज से बढ़कर हो। मुझे तुम्हारे पास सिर्फ प्यार चाहिए और तुम्हारी इबादत की तन्हाई में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर उन्होंने हजरत अली के सिर पर हाथ रखा और दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे पति के लिए हकीकी रोजी और आसानियां भेज। उनके दिल को सुकून दे और उन्हें दुनिया और आखिरत की भलाई अता कर। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की यह दुआ उस घर की सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि उनके ईमान और उनकी सादगी ने हजरत अली को हिम्मत दी और मुश्किलों का सामना करने की ताकत दी। उस समय यह बात हर किसी के लिए एक सीख थी। अगर इंसान के पास सिर्फ ईमान हो तो वह दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी में भी खुश रह सकता है। और यही फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की असली पहचान थी। एक ऐसी औरत जो सादगी, सब्र और अल्लाह पर भरोसा की मिसाल बनी। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर जितना छोटा था, उतना ही उनका इबादत का मकाम बड़ा था। उनकी दिनचर्या में सिर्फ घर के काम नहीं, बल्कि नफ्स की तड़प को काबू में रखना और अल्लाह से प्यार करना भी शामिल था। हर रोज सुबह वह उठती और सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती। फिर अपने पति के लिए दुआ करती कि अल्लाह उनके दिल में सच्ची हिम्मत और ईमान बढ़ाए। उनकी इबादत इतनी खामोशी से होती कि घर में कोई आवाज नहीं होती थी। उनकी नजरें अक्सर रोशन रहतीं, क्योंकि उनकी आंखों में हमेशा अल्लाह की याद रहती थी। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज्यादा नमाज पढ़ती हैं और बहुत देर तक इबादत करती हैं। नबी ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने फातिमा से कहा, फातिमा, तुम्हारे पास क्या है? फातिमा ने उत्तर दिया, मेरे पास तो सिर्फ अल्लाह का डर और आपके लिए मोहब्बत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फातिमा, तुम्हारी ये इबादत बहुत अच्छी है, लेकिन अपने शरीर को भी आराम दो, क्योंकि तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा एक जिम्मा है। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा है,
اس لیے میں عبادت میں کمزوری نہیں کرنا چاہتی۔ نبی نے اپنی پیاری بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہا، تمہاری عبادت اور تم اور علی دونوں میرے لیے بہت اہم ہو، لیکن یاد رکھنا اللہ نے تمہیں صرف عبادت کے لیے نہیں بنایا بلکہ تمہیں ایک دین کی مضبوط ستمبھ بنانا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے دعا کی، اے اللہ، فاطمہ کو اپنے عبادت میں ستھر رکھ، ان کے گھر میں برکت دے اور ان کے پتی کو دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا کر۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ عبادت نہ کیول ان کے لیے بلکہ ان کے گھر کے لیے بھی ایک اجالا بن گئی۔ ان کے گھر میں جو بھی مشکل آتی وہ سب عبادت اور صبر سے حل ہوتی۔ فاطمہ کی سادگی اور ان کی ایمانداری کی مثال سن کر کئی لوگ کہنے لگے، اگر فاطمہ جیسی عورت ہو تو آدمی کو کسی اور کی تلاش کی ضرورت نہیں۔ سمے کی رفتار بہت تیز تھی، لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں قسمت کا ایک بہت بڑا موڑ آنے والا تھا۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں کئی مشکلیں آئیں، اور اس دور میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحت بھی بگڑنے لگی۔ ان کی کمزوری اتنی بڑھ گئی کہ وہ روزمرہ کے کام بھی مشکل سے کر پاتی تھیں۔ پھر ایک دن انہوں نے خود اپنے پتی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا، علی، میری حالت ٹھیک نہیں ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میری موت بہت پاس ہے۔ حضرت علی نے کہا، اللہ کی اچھا جو بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میری دنیا ہو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، علی، میں تم سے ایک چیز کی دعا مانگتی ہوں، جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرے لیے صرف ایک چیز کرو، میرا شو تمہارے گھر کے پیچھے والے مکان میں دفن کرنا، تاکہ لوگ مجھے صرف اپنے گھر کے اندر ہی یاد کریں۔ حضرت علی نے ان کی بات کو غور سے سنا اور کہا، تمہاری اچھا جیسی ہو ویسی ہی پوری کروں گا۔ پھر ایک دن اللہ نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ ان کی موت کے بعد پورے مدینہ میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو اور دلوں میں ایک خالی پن تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی پیاری حضرت کو کھو دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر رونے لگے اور بار بار یہی کہہ رہے تھے، میری بیٹی، میری بیٹی۔ پھر انہوں نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے دعا کی، اے اللہ، میری بیٹی کی قبر کو جنت کا ایک باغیچہ بنا دے اور انہیں اپنے حسن و برکت سے نواز۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقبرہ آج بھی مدینہ کے پاس ستھت ہے، اور ہر سال لاکھوں مسلمان وہاں جاتے ہیں۔ وہاں لوگ ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان سے پریرنا لیتے ہیں کہ کیسے ایک انسان سادگی، ایمان اور محبت کے ساتھ دنیا میں رہ سکتا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے، اصلی طاقت پیسوں میں نہیں بلکہ ایمان اور نیک ارادوں میں ہوتی ہے۔ ان کی سادگی، ان کا صبر، ان کی عبادت اور ان کی سیوا، یہ سب آج بھی ہر مسلمان کے لیے ایک مثال ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہر دل میں سرائے حق کی طرح سمان ملتا ہے۔